Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about the 30th aphorism. Before that, we would like to brief the 21st aphorism, which is pathogenetic symptoms curative in medicine. Aphorism number 22, which states the contraria contribus curentur. Aphorism 23, which states the demerits of antipathy. Aphorism number 24, which states the similia similibus curentur. Aphorism 25, which states the merits of homeopathy. Aphorism 26, which states the homeopathic law of cure. Aphorism number 27, which states the curative power of medicine. Aphorism number 28, which states the confirmation of law of nature. Aphorism number 29, which states how homeopathic cure takes place. And aphorism number 30, that is regulation of dose. Let us start by reading the 30th aphorism. It states, the human body appears to admit of being much more powerfully affected in its health by medicines, partly because we have the regulation of dose in our own power than by natural morbid stimuli, for natural diseases are cured and overcome by suitable medicines. इस aphorism के थ्रू 3 पॉइंट्स डॉक्टर हैनेमन ने हमें समझाए। पहला पॉइंट कि जो ये ह्यूमन बॉडी है ये मेडिसिन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है रादर दैन नेचुरल डिजीज़। जो नेचुरल डिजीज़ का स्टिमुलाई है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितनी हमारी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा पॉइंट, इसी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से जो हमारी मेडिसिन है वो नेचुरल डिजीज़ को इरेडिकेट कर पाती है। और तीसरा पॉइंट, जो हमारी मेडिसिनल इन्फ्लुएंस्ड डिज़ीज़ पैदा होती है या जो आर्टिफिशियल डिज़ीज़ होती है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि डोसेज ऑफ मेडिसिन हमारे हाथ में है। तो इन 3 पॉइंट्स को डॉक्टर हैनेमन ने इस एफोरिज्म में समझाया है। इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। डॉक्टर हैनेमन आर्ग्यूज दैट द ह्यूमन बॉडी कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इन इट्स हेल्थ बाय मेडिसिन्स मोर दैन बाय नेचुरल डिजीज़, यानी कि जो नेचुरल डिजीज़ जितना इन्फ्लुएंस करेगी उससे कहीं ज़्यादा जो मेडिसिन है वो इन्फ्लुएंस कर जाती है ह्यूमन बॉडी को। सेकेंड पॉइंट, दिस इज़ अपेरेंट बिकॉज व्हेन सूटेबल रेमेडीज़ आर गिवन दे आर एबल टू रिमूव द डिजीज स्टेट। ये जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं उसी की वजह से उसकी डिजीज स्टेट रिमूव हो सकती है, या जो नेचुरल डिजीज़ है वो तभी एनिहिलेट या इरेडिकेट होती है। Third point, this is partly due to our ability to control the dosage of medicine. He suggests that natural diseases can be cured and overcome by administering appropriate medicine. This implies that medicines have a profound impact on the body's health, potentially more than the body's response to natural stimuli. Dr. Henneman's perspective underscores the importance of using medicines judiciously and appropriately to manage and treat diseases effectively. तो हमने डॉक्ट्राइंस में भी पढ़ा है कि हम बहुत मिनिमम माइन्यूट डोजेस देते हैं। स्मॉल डोजेस के लिए कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो स्मॉल डोज भी है वो इतनी ज़्यादा डायनामिक है इन अफेक्शन कि वो नेचुरल डिजीज़ को इरेडिकेट कर सकती है। तो जो डोज का यूसेज है वो हमें जुडिशियसली करना पड़ेगा, तभी हम पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। इसका एक फुटनोट है, उसे भी रीड कर लेते हैं। द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मोबिफिक फोर्सेज विच वी टर्म मेडिसिन्स makes it possible that although they are stronger than the natural diseases, they can yet be much more easily overcome by the vital force than can the weaker natural diseases, which solely in consequence of the longer, generally lifelong duration of their action, sora, syphilis, psychosis, can never be vanquished and extinguished by it alone until the physician affects the vital force in a stronger manner by an agent that produces a disease very similar but stronger to wit a homeopathic medicine. The cures of diseases of many years' duration, mentioned in aphorism 46, by the occurrence of smallpox and measles, both of which run a course of only a few weeks, are processes of a similar character. अब इस फुटनोट को 4 सिंपल पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनका बहुत शॉर्टर एक्शन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है उनका।
तो इस वजह से जो वाइटल फोर्स है वो जल्दी ओवरकम कर जाती है इन मेडिसिन से एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल डिजीज़ेस। नेचुरल डिजीज़ेस जो होती हैं, जो स्टिमुलस से पैदा होती हैं, इनको टाइम लगता है, दे आर अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा पॉइंट ये कि जो नेचुरल डिजीज़ स्टेट है ये मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस से क्रिएट होती है और ये लंबे टाइम तक चलती है। और हम 3 मियाज़म पढ़ते हैं ऑर्गेनन में, इट इज़ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो ये जो नेचुरल डिजीज़ स्टेट होती है ये मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस से होती है। तीसरा पॉइंट, तो जो हमने पहले पढ़ा कि नेचुरल डिजीज़ेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए होती हैं, इनका जो एक्शन पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल डिजीज़। तो जो नेचुरल डिजीज़ेज़ हैं इनके प्रोलॉन्ग पीरियड की वजह से ये वाइटल फोर्स से अकेला, मतलब हम कहें कि सिर्फ वाइटल फोर्स इसको ठीक कर देगी, इस डिज़ीज़ से कॉम्बैट कर पाएगी, तो नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी पड़ती है ताकि वो सिमिलर पर लेकिन एक स्ट्रॉन्गर डिजीज़ प्रोड्यूस कर सके, ताकि वाइटल फोर्स उसके खिलाफ लड़े पर लेकिन एक जो पोटेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर दे, ताकि जो नेचुरल डिजीज़ के लिए जितनी वाइटल फोर्स, जितनी इम्यूनिटी चाहिए थी, वो नेचुरल डिजीज़ वहाँ इरेडिकेट हो जाए और जो मेडिसिनल प्रोड्यूस्ड या जो आर्टिफिशियल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं वो अपने आप मेडिसिन की डोसेज रेगुलेट करने की वजह से ख़त्म तो हो ही जाएगी। जो चौथा पॉइंट यहाँ डॉक्टर हैनिमन कहना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ एफोरिज्म नंबर 46 का मेंशन किया। वी विल टॉक अबाउट दैट एफोरिज्म अ लिटिल लेटर, बस उसका एसेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें डॉक्टर हैनिमन ने बताया कि कैसे स्मॉल पॉक्स, जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का एक इलनेस है, वो मीज़ल्स के आते ही ठीक हो जाता है। मीज़ल्स तो कुछ हफ्ते ही रहता है। तो ये चीज़ कैसे हो जाती है कि अ शॉर्ट इंटेंस डिजीज़ इफ़ेक्टिवली कॉम्बैट्स एंड क्योर अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिजीज़। तो ये भी सेम फिनोमेना है। अब जो स्मॉल पॉक्स है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, कह सकते हैं कि वो भी मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस की तरह ही है जो लाइफ लॉन्ग चल सकता है। पर लेकिन क्या होता है कि जैसे ही एक स्ट्रॉन्गर और एक्यूट कंडीशन आ जाती है, जैसे कि मीज़ल्स, तो वो स्मॉल पॉक्स अपने आप इरेडिकेट हो जाता है। और मीज़ल्स कुछ टाइम बाद, तो उसने फ्यू वीक्स के बाद उसका अपने आप ही एंड हो जाना है। तो जैसे हमारी मेडिसिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करती है पर स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए वीकर अफेक्शन को इरेडिकेट या एक्सटिंग्विश कर पाती है, सिमिलरली मीज़ल्स होते ही स्मॉल पॉक्स की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। यही उन्होंने एफोरिज्म नंबर 46 में समझाया था कि क्योंकि मीज़ल्स एक स्ट्रॉन्गर अफेक्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो अगर पेशेंट मीज़ल्स से अफेक्टेड हो जाएगा तो जो उसका स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो इतने लंबे समय से लॉन्ग ड्यूरेशन इलनेस चल रही थी, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और मीज़ल्स भी एक टाइम के बाद, क्योंकि उसका तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कुछ हफ्तों का ही है, जैसे ही वो ड्यूरेशन उसका ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट क्योर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल पॉक्स भी ख़त्म हो गया और मीज़ल्स भी ख़त्म हो गया। पेशेंट इज़ नाउ फुल्ली रिस्टोर्ड टू हेल्थ। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।